So we'll discuss about allotropes of carbon. So at first we should know what is the meaning of the term allotropes, और एक related term है allotropy. One related term is allotropy. Now what is the meaning of the term allotropes? Just look at here. The term is allotrope. Now meaning of the term: the different forms of an element having different physical properties. The different forms of an element, यहाँ पे आप देख सकते हो different forms of carbon are given here. Different forms of carbon. Carbon का अलग अलग form यहाँ पे given है. They are fullerene, diamond and graphite. Can you name some other forms of carbon? कार्बन का कोई और फॉर्म क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? कोल, गुड, कोल इज करेक्ट. देन कोक, ओके. देन किसी ने बेंजीन, केरोसिन ये सब भी लिखा है, दे आर नॉट करेक्ट. और ड्राई आइस जो लिखा है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड होता है. I am not asking about compound. I am asking about different forms of carbon. I am asking about different forms of carbon. Carbon का अलग अलग फॉर्म में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम. अगर आप फुलरिन, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, कोक, किसी को भी अगर आप ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बर्न करते हो, in presence of sufficient oxygen, if you burn them in presence of sufficient oxygen, you will get carbon dioxide. Okay, or insufficient oxygen होने से carbon monoxide. मतलब chemically all are same, but physical properties जैसे उनका melting point, boiling point, hardness, ये सब different है. They have similar chemical properties, but they have different physical properties. And these different forms are called what? Allotropes. And the phenomenon of existence of allotropic forms of an element is called allotropy. Okay? एक element अगर different allotropic form में exist करता है, then that phenomenon is called what? Allotropy. Okay? I hope you have understood the meaning of the term allotropes and allotropy. क्योंकि आज का क्लास का first part में we will discuss about allotropes of carbon. और कार्बन का 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. फुलरिन, डायमंड एंड ग्रेफाइट. फुलरिन, डायमंड एंड ग्रेफाइट. ओके, सिवेश इज सेइंग दैट ही हैज नॉट अंडरस्टूड अबाउट एलोट्रॉपी. तो एक बार ठीक से सुन लो आप. इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, एक ही एलिमेंट अगर नेचर में अलग अलग फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे carbon in the form of diamond, carbon in the form of graphite, carbon in the form of fullerene, carbon in the form of coke, carbon in the form of coal, charcoal, सब में कार्बन, लेकिन सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, देयर अगर हम सोल्यूबिलिटी का बात करें, देन अबाउट देयर हार्डनेस, ये सब डिफरेंट है. अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स, ये भी कंप्लीटली डिफरेंट. They have different physical properties but similar chemical properties. Then that different forms are called allotropes, and this phenomenon is called what? Allotropy. This phenomenon is called allotropy. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ओके, कार्बन ही एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. There are allotropic forms of phosphorus. Okay, red phosphorus, white phosphorus, black phosphorus. वंदना ने पूछा है सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनका, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, तभी हम लोग उनको एलोट्रॉप्स बोलेंगे. ओके, सो अगर आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, नेम 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो बेस्ट आंसर है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन. और इन तीनों के बारे में आज का क्लास में डिस्कशन है. सो द 2 कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कॉमन में अगर पूछा जाए, ज्यादा कॉमन जो हम लोग सब जानते हैं, द 2 कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दे आर डायमंड एंड ग्रेफाइट. एंड फुलरिन इज अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन.
और ये अलग अलग फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में ही। सो फर्स्ट अबाउट डायमंड, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं अबाउट डायमंड। Diamond is an allotropic form of carbon. In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, forming a rigid 3-dimensional tetrahedral structure. तो डायमंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ एटॉम्स का अरेंजमेंट देखोगे, तो एक कार्बन एटॉम is linked to 4 other carbon atoms. One carbon atom is linked to 4 other carbon atoms, okay, and it is forming a 3-dimensional structure. और यही स्ट्रक्चर इसको रिजिड और हार्ड बनाता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3-डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रॉन क्या है, लास्ट क्लास उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। टेट्राहेड्रॉन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। आप देखो ये एक ट्राइंगल और यहाँ पे 3-डायमेंशनल में एक और ट्राइंगल आ गया, एक इधर आ गया, टोटल यहाँ 4 ट्राइंगल्स हैं। एंड सच स्ट्रक्चर्स, सच ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी व्हाट? टेट्राहेड्रॉन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रॉन। और कार्बन एटॉम के केस में यू ऑलरेडी नो दैट अ कार्बन एटॉम इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन का जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब है कि ये जो चारों ट्राइंगल यहाँ पे होगा, ये जो 4 ट्राइंगल यहाँ पे होगा, सभी ट्राइंगल इक्वल साइज्ड होने से इट इज कॉल्ड रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सो इन केस ऑफ डायमंड, ईच कार्बन एटॉम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटॉम। हर एक कार्बन एटॉम 4 कार्बन एटॉम के साथ लिंक होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। And because of this structure, diamond is extremely hard crystal with very high melting and boiling points. अब एक कार्बन का 4 free electrons all are used up in chemical bonding. 4 valence electrons all are used up in chemical bonding. अगर सब यूज हो गया तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। There are no free electrons in the structure of diamond, and thereby diamond is poor conductor of electricity. Okay, डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का मेन रीजन क्या है कि डायमंड का स्ट्रक्चर में ईच कार्बन एटॉम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटॉम बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स diamond is poor conductor of electricity. Why diamond is the hardest natural substance? Because of the arrangement of atoms. The atoms, carbon atoms in diamond, they are arranged in 3-dimensional tetrahedral structure. This is a rigid structure which makes diamond hardest natural substance. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि why are free carbon at the end not bonded with another atom? ये भी bonded है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा तो ये ऐसा बनते जाएगा। आप कंटिन्यूअस इसको करते रहो। तो आप ये जो स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो, ये लास्ट में आपको एक कार्बन जो फ्री दिखाई दे रहा है इसके साथ 3 और होगा ऐसे। सो लास्ट में जो फ्री दिखाई दे रहा है इसके साथ 3 और होगा। तो इस तरह अगर मुझे टाइम पास करना होगा, then I can keep on drawing this particular tetrahedral structure. Okay, so have you understood this part about the structure of diamond? आपको याद रखना, diamond is poor conductor of electricity because of the absence of free electrons in the structure of diamond. अब हम लोग बात करेंगे about graphite. We discussed about diamond, now we can discuss about graphite. Here there is another question. Diamond का particular shape. आदित्य मजुमदार, डायमंड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये रॉक का पीस जैसा ही मिलता है अर्थ क्रस्ट में, फिर उसको ऐसा शेप दिया जाता है, एंड दिस शेप इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग अ फेनोमेनन और क्रिएटिंग अ फेनोमेनन दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक स्पेशल फेनोमेनन जनरेट करने के लिए डायमंड को ऐसा कट किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और ऐसे रॉ अगर डायमंड को देखेगा तो इतना ब्राइट नहीं होगा डायमंड,
डायमंड को प्रॉपरली कट किया जाता है और ऐसा कट किया जाता है कि उसमें एक नेचुरल फेनोमेनन होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड उसी की वजह से बिकॉज ऑफ दैट डायमंड अपीयर्स ब्राइट सब्सटेंस ओके अदरवाइज डायमंड ब्राइट नहीं दिखेगा आपको ग्लास का पीस जैसा ही दिखेगा इंडिया में कौन सा ऐसा सिटी है जो वर्ल्ड फेमस है फॉर दैट कटिंग ओके सबको मेजोरिटी को पता है सूरत इन गुजरात ओके वहां पे ये काम किया जाता है ओके अब अश्मित पूछ रहा है कि डायमंड इतना कॉस्टली क्यों है जो चीज रेयर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाता है तो अगर आपको अभी टोमेटो मार्केट में मिल रहा है सपोज ₹60 और 70 पर केजी यही टोमेटो का अगर स्कैरसिटी हो जाएगा तो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा बस जो चीज जिसका स्कैरसिटी है तो ये सब डिमांड और सप्लाई ये सब के ऊपर डिपेंड करता है ये इकोनॉमिक्स है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अब हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्रेफाइट graphite now we can discuss about graphite in graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms by covalent bond एक कार्बन एटॉम आप यहां पे देखो दिस कार्बन एटॉम इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन एटॉम 1 2 एंड 3 तो एक कार्बन एटॉम अगर 3 के साथ लिंक्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया one electron is not taking part in chemical reaction or bonding ओके एंड इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज हेक्सागोन एंड हेक्सागोन का ये एक लेयर ये दिस इज अनदर लेयर एंड दीज लेयर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय वीक फोर्स ये फोर्स बहुत ही वीक होता है इतना वीक कि एक लेयर दूसरा लेयर के ऊपर स्लिप कर सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट डायमंड दैट ग्रेफाइट is slippery material ये जो layers they slip one over another so these layers are attracted to each other by weak force और इस weak force का नाम भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया that is van der Waals force and because of such structure graphite is soft and slippery and can be used as lubricant do you know क्या करता है lubricant do you have any idea Do you have any idea? It reduces friction. It reduces what? Friction. Okay. और hardest natural substance का बात अगर करें तो that is what? Diamond. We were discussing about graphite and यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है in graphite. We discussed that graphite can be used as lubricant. Graphite can be used as lubricant. And graphite is good conductor of electricity. Graphite is good conductor of electricity because of the presence of free electrons. ओके और आपको ऑलरेडी पता ही होगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी metals are good conductor of electricity because of the presence of free electrons okay so in graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms by covalent bond to form hexagonal layered structure and these layers are attracted to each other by weak force क्या बताया मैंने नाम उस weak force का it is van der Waals force it is van der Waals force this is a weak force and because of such structure graphite is soft and slippery can be used as lubricant reduces friction normally oils use होता है friction कम करने के लिए ये एक solid है जिसको use किया जाता है for reducing friction for what reducing friction so there are free electrons in the structure of graphite and so it is good conductor of electricity तो आपको अगर डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंसेस लिखना है तो इस एक्सप्लेनेशन से यू कैन थिंक अबाउट 3-4 डिफरेंसेस डायमंड हार्ड ग्रेफाइट सॉफ्ट लाइक दैट
स्ट्रक्चर में डायमंड का स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर. Diamond is poor conductor of electricity, graphite is good conductor of electricity. So these are some of the differences, and you can think of some more differences between diamond and graphite. और ग्रेफाइट का एक यूज यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लीड. ओके, ग्रेफाइट का कोई और यूज बता सकते हो आप? ग्रेफाइट का कोई और यूज आप बता सकते हो? Any other use of graphite? It is used in making electrode. Good, शिवेश ने आंसर दिया है. पेंसिल लीड में तो यूज होता ही है. डायमंड का एक यूज है, डायमंड का एक यूज है इन मेकिंग व्हाट? डायमंड का वन यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. और कोई यूज डायमंड का बता सकते हो? यस, शिवेश ने ग्लास कटिंग, इट इज ग्लास कटिंग, ग्लास कटिंग में यूज होता है. ड्रिलिंग ये सब में भी यूज होता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म. और ये एलोट्रोपिक फॉर्म आप लोगों के लिए नया होगा. ओके, दैट इज फुलरिन. इस फुलरिन को बकमिंस्टर फुलरिन का नाम पे रखा गया है, उसका सरनेम है यहाँ. इसको बकमिंस्टर फुलरिन, ओके, रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर, और इसका फुलर से फुलरिन आया हुआ है. और ऐसा क्यों किया गया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. In 1985, scientists discovered a new family of carbon allotropes. They are fullerenes. Fullerenes का अलग-अलग number of carbon atoms से अलग-अलग type का fullerene है, and we are mainly discussing about C60. C60 मतलब 60 carbon atoms. They are arranged in the form of what? In the spherical form, और वो दिखने में कुछ geodisc dome का structure का जैसा दिखाई देता है. So its molecule is made up of cluster of 60 carbon atoms arranged in the shape of football. It is named Buckminster fullerene after the name of American architect Robert Buckminster Fuller. तो एक आर्किटेक्ट का नाम पे एक एलोट्रॉप का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये आर्किटेक्ट कुछ स्टेडियम डिजाइन किया था, और वो स्टेडियम डिजाइन करते वक्त स्टेडियम का जो कवर, ऊपर का जो कवर है उसका शेप ऐसा था, जियोडिस्क डूम लाइक स्ट्रक्चर, और फुलरिन का स्ट्रक्चर वाज सिमिलर टू दैट. सो इट इज नेम्ड आफ्टर बकमिंस्टर फुलर, ओके, अमेरिकन architect who designed geodisc domes which exactly resembled with it. And C60 also looked like a perfect sphere. ये सिर्फ जियोडिस्क डूम जैसा नहीं दिखाई देता, ये दिखाई देता कंप्लीट बॉल जैसा एक दिखाई देता है. एंड दिस इज आल्सो नोन एज बाकी बॉल, आल्सो नोन एज व्हाट? बाकी बॉल. सो जब हम फुलरिन का बात करता है तो मेनली बात करेगा अबाउट C60, और इसका मेडिकल यूजेस भी है. दिस C60 कैंसर ट्रीटमेंट का कुछ मेडिसिन बनाने के लिए भी इसको यूज किया गया है. ओके, so we discussed about three allotropes. First one, 3 allotrope के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. फर्स्ट वन डायमंड, देन ग्रेफाइट, देन फुलरिन. डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, 3 we have discussed. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, Bandana Prajapati is a good conductor or bad conductor of electricity? It is actually good conductor of electricity. चिराग ने पूछा कौन सा साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया? ये हमको अभी आइडिया नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा कौन साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया. ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट किया होगा आई थिंक, लेकिन एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं है इसके बारे में. So we discussed about 3 allotropes. और आप यहाँ देख सकते हैं एक स्टेडियम का जो शेड है वो जियोडिस्क डूम लाइक स्ट्रक्चर, और ये बाकी बॉल या फिर बकमिंस्टर फुलरिन का स्ट्रक्चर जैसा ही है ऑलमोस्ट. ओके,
शिवेश पूछ रहा यूज ऑफ फुलरिन। फुलरिन का मैंने यूज बताया था कैंसर ट्रीटमेंट और एड्स का ट्रीटमेंट में C60 is in use. So if you look at the arrangement of atoms in the 3 allotropes of carbon, तीनों एलोट्रॉप में अगर आप एटॉम्स का अरेंजमेंट देखोगे तो ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, and here atoms are arranged in the form of a, or in spherical form. It looks like a football or a buckyball, or its part can be compared to geodesic dome. Okay. So differences between diamond and graphite important question है किसी भी एग्जाम के लिए. And graphite can be converted into diamond. Graphite को हम लोग डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड में, by subjecting graphite to high temperature and pressure. तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. So अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, how will you convert diamond into graphite? Diamond can be converted into graphite by subjecting diamond to very high pressure and temperature. Diamond और graphite में 4 differences यहाँ दिया हुआ, simple differences to learn. Okay, 4 simple differences. और मनीष यहाँ पूछ रहा है, मनीष का कोई इनकम्प्लीट क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है किस चीज के बारे में पूछ रहा है. So diamond and graphite, 4 differences are given here. आपको 2 मिनट टाइम दिया जाता है चारों डिफरेंस लर्न करने के लिए. आज का क्लास में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपको, और क्लास में लास्ट में एक 10 मार्क्स का वो टेस्ट भी आपको मेगा एग्जाम में देना है. ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं, मैंने उसमें क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों को मिला के ही उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है. शिवेश वंदना प्रजापति, डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रॉन एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रॉन एक ज्योमेट्रिकल फिगर, और टेट्राहेड्रल अगर कोई भी स्ट्रक्चर उस ज्योमेट्रिकल फिगर जैसा है तो हम लोग बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. आपको स्पेलिंग करेक्शन करना होगा. चिराग, प्राइस रिमेन्स द सेम. नहीं, आर्टिफिशियल डायमंड का प्राइस कम है कंपेयर टू नेचुरल डायमंड, प्राइस सेम नहीं है. Okay, now you are given 2 minutes to learn 4 differences between diamond and graphite. So diamond और graphite में differences, I hope you have learned 4 differences. 4 differences. So moving to another topic. उसी को कंटिन्यू करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. आप यहाँ देख सकते हो कि बिसाइड्स कार्बन देयर आर अदर एलिमेंट दैट फॉर्म्स एलोट्रॉप्स. जैसे सल्फर का एलोट्रॉप्स है, फास्फोरस का एलोट्रॉप्स है. आपको ऐसे ये बुक में नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है. एलोट्रॉप्स बुक में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि आपको अगर पूछा जाए नेम 2 एलिमेंट्स अदर देन कार्बन दैट शो एलोट्रॉपी, ओके, दे आर सल्फर एंड फास्फोरस. सल्फर का एलोट्रॉप्स rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Okay. And allotropes of phosphorus, white, red, and black phosphorus. White, red, and black phosphorus. These are the allotropes of phosphorus. आप देखो इनमें कि सभी phosphorus से ही बना हुआ है, लेकिन atomic arrangement different है. Okay, so white phosphorus, red phosphorus, black phosphorus, common में white और red है. और सल्फर में rhombic sulfur and monoclinic sulfur. There are the 2 types of sulfur, allotropic forms of sulfur. अब हम लोग बात करेंगे about versatile nature of carbon. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही वर्सेटाइल है. ये अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट वे में, डिफरेंट अरेंजमेंट में, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आपको अलग अलग वैरायटी में. कार्बन इतना वर्सेटाइल है कि
सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स मोर देन 5 मिलियन से, देयर आर मोर देन 5 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स। और पीरियोडिक टेबल में बाकी सब एलिमेंट्स अगर उनका कंपाउंड को काउंट किया जाए दैट इज नियर टू 30 टू 40, वो कितना 30 टू 40,000, और सिर्फ कार्बन का कंपाउंड्स मोर देन 5 मिलियन। सो इट इज एन एलिमेंट विद वर्सेटाइल नेचर, और इसका जो वर्सेटाइल नेचर है उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके तो सीवेस ने चैप्टर का एक और नाम सजेस्ट किया है। चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसने चेंज करके दिया है कार्बन एंड इट्स लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स, खराब नहीं है नाम। वो तो आप लोगों का गुड लक है कि इस साल कोरोना के वजह से आपका सिलेबस इस चैप्टर में 50% भी नहीं बचा है। ओके ये चैप्टर में 50%, और जो क्रिटिकल पोर्शन था, जो स्टूडेंट को ज्यादा ब्रेन का एक्सरसाइज करवाने का पोर्शन था, वही हटा दिया गया है। So carbon is a versatile element, is found in many different forms and many different chemical compounds, including those found in space. स्पेस में भी कार्बन का बहुत कंपाउंड अवेलेबल है। इवन हम लोग का बॉडी, ओके हम लोग का बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबका जो बेस कंपाउंड है दैट इज कार्बन कंपाउंड। कार्बन इज वर्सेटाइल बिकॉज इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन एक ऐसा एक्सेप्शनल एलिमेंट है जो दूसरा कार्बन एटॉम के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है। कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता। इट कैन ऑल्सो फॉर्म चेन्स which are branched or rings. कार्बन का एक और स्पेशल एबिलिटी, कार्बन कैन लिंक टू अदर कार्बन एटॉम्स by covalent bonds to form long chains. ये long chains may be straight, that long chains may be branched, that long chains may be cyclic, that may be cyclic. Okay, so they are rings when connected to other carbon atoms. Our body and all the bodies of living organisms are also made up of carbon based substance, proteins, then carbohydrates, vitamins, सब में तो कार्बन है, लिपिड्स, ओके तो सब में कार्बन है। अगर हम बोले डीएनए, आरएनए, ये भी कार्बन से बना हुआ है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज नेचर ऑफ कार्बन, और स्पेशली हम लोग बात करें तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। Now here, the number of organic compound is more than 5 millions, but the total number of inorganic compound is only about 30 to 40,000. Okay, the large number of organic compound का simple meaning है कार्बन compounds, क्योंकि कार्बन का कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज्यादा है। That unique properties are catenation, tetracovalency, tendency to form multiple bond, and ability to form strong and stable bonds. कार्बन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा नंबर है, वो मेन प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। देन टेट्राकोवेलेंसी, वो तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। फिर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इसके बारे में भी हम लोग को नॉलेज है। कार्बन विद अदर कार्बन एटॉम कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपको अगर पूछा जाए कि इथाइन, आपको अगर पूछा जाए इथाइन कैसा कंपाउंड है, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड, ओके मेजोरिटी को ये आंसर पता है ट्रिपल बॉन्डेड। नाम से ही पता चल गया, इतना इंटेलिजेंट आप लोग हैं तो नाम से पता चल गया। अब आपको अगर पूछा जाए इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो जल्दी से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन, इफ आई आस्क यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन, बहुत टाइम लगा। मनस्वी का रॉन्ग है, तनिष्क का रॉन्ग है, तनिष्क सांकला का भी रॉन्ग है, दिशा का करेक्ट है आंसर, देन अद्वित
अद्वैत का करेक्ट है, अरुणभा करेक्ट, C2H2 इज द आंसर, इथाइन C2H2। बहुत वीडियो मैंने अपलोड किया है, उनका लिंक भी शेयर किया आपके साथ, और लिंक अगर शेयर नहीं हुआ तब भी उन स्टूडेंट को मैं बता देता हूं, आप मेरा एक चैनल बनाया हुआ पूरा, आप उसको सब्सक्राइब करो या मत करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लाइक करना नहीं करना, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बेल आइकन प्रेस करना नहीं करना, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन यू। बस उस चैनल में जाके, नाम है नमन एजुकेशंस, उस चैनल में जाके आपका काम का वीडियो आप देख सकते हो। ओके, ये काम जरूर कर लेना आप। So what are the unique properties that we are going to discuss? वैसे पता चल गया हम लोग को यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में, अब इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। ओके, now first about catenation. Catenation, what is catenation? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन पूछा जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटॉम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। वैसे तो कार्बन को छोड़ के अदर एलिमेंट्स आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, लेकिन डेफिनेशन में मेनली कार्बन के बारे में ही बोला जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटॉम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड व्हाट? Catenation. In short, the self-linking ability of carbon atoms by covalent bonds to form long chains. To form long chains is called catenation. That long chains may be straight, branched, or cyclic. Straight, branched, or cyclic. Okay. So straight chain भी हो सकता है, branch chain भी हो सकता है, और cyclic भी हो सकता है। चलो एक यहीं पे एक आपको पूछ लेता हूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल बता दो आप। वन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। गुड, शिवेश, दिशा, तनिष्क, मनस्वी, वान्या, आदित्य, लोकेश, सांची, सबने आंसर दिया है बेंजीन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड और कितना सिंगल बॉन्ड है, जल्दी बता दो। बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड और कितना सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बेंजीन में। चलो डबल बॉन्ड तो पता चल गया, मेजोरिटी को 3 है, 3 डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितना है? सिंगल बॉन्ड कितना है? सिंगल बॉन्ड, ओके, single bond there are 9 single bonds I think। कितना सिंगल बॉन्ड? 9। ओके, बेंजीन में 9 सिंगल बॉन्ड। तो आप स्ट्रक्चर को स्टडी करना। डबल बॉन्ड देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स एंड देयर आर 9 सिंगल बॉन्ड। चलो इसी को मैं बेंजीन बना के आपको दिखा देता हूँ। बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ओके, तो आप देख लो यहाँ पे कितना सिंगल और कितना डबल बॉन्ड है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर। हैव यू अंडरस्टूड दिस कैटेनेशन? समझ में आ गया आप लोगों को? What is catenation? The property of self-linking of carbon atoms through covalent bonds to form long chains, which are straight, branched, or cyclic is called catenation. Now moving to this part, next one. यहाँ थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा याद रखना होगा आप लोगों को। कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैटेनेशन सिर्फ कार्बन का अकेला का प्रॉपर्टी नहीं है, अदर एलिमेंट्स आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। लेकिन सबसे ज्यादा कैटेनेशन का एबिलिटी, मतलब लॉन्ग चेन बनाने का कैपेसिटी किसके पास है? कार्बन। उसका रीजन है स्मॉल साइज।
ये साइज स्मॉल होने की वजह से उसका बॉन्ड जो होता है स्टेबल बॉन्ड होता है, ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्बन का ज्यादा कैपेसिटी है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास स्पेशल एबिलिटी क्यों है, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने से 4 बॉन्ड्स बना सकता है, एंड इट हैज यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। वो तो हम लोग को पता ही है, स्मॉल साइज से इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन भी कैटेनेशन दिखाता है, सल्फर भी कैटेनेशन दिखाता है, लेकिन उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज दैट एटॉम्स आर कंपैरेटिवली larger sized atoms, and these compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even carbon atoms are arranged in rings, ये already हम लोग को पता है, and carbon may be linked to each other by single bond, double bond or triple bond। अगर आपको मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप। इफ आई आस्क यू single bonded carbon compounds, organic compounds are also called what? Single bonded organic compounds पूछ रहा हूं मैं, organic compounds, ठीक है, बहुतों ने आंसर दिया एल्कीन, ठीक है चलेगा। एक और पॉसिबल अच्छा आंसर है, दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, गुड, दिशा ने आंसर दिया सैचुरेटेड कंपाउंड्स। डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स, वो कुछ भी हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है बीच में, सो दे आर व्हाट, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होगा देन दे आर अनसैचुरेटेड, दे आर व्हाट, अनसैचुरेटेड, ओके। और हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्डेड को हम लोग बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्डेड को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्डेड को एल्काइन। So no other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive, stability कम है। Carbon-carbon bond is very strong and hence stable, and this gives us large number of compounds with many carbon atoms linked to each other। मतलब बात वही हो रहा है कि कार्बन का कैटेनेशन का एबिलिटी बहुत ज्यादा है। Apart from carbon, other elements capable of catenation include silicon, sulfur, boron, phosphorus, okay। However, none of these elements form as long chain as carbon। तो किसी के पास भी इतना कैपेसिटी नहीं है लॉन्ग चेन एज दैट ऑफ कार्बन। सो ऐसा एक फॉर्मूला अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे C 2000 H 1000 O 2000, तो ऐसा भी पॉसिबल है, okay, in case of carbon। For example, sulfur naturally occurs as S8 molecule, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, S8 molecule। कौन हमको बताएगा कि S8 molecule में एक मैंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर का क्या नाम बताया था, एक कुछ जिगजैग जैसा कुछ था, ओके। हर्ष अग्रवाल ने आंसर दिया क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। मैंने एक और टर्म यूज किया था वहां पे, किसी को याद है? I used another term there, crown like structure, साथ ही साथ मैंने एक और टर्म यूज किया था वहां पे, anyone? I used the term, अभी तक आंसर मिला नहीं मुझे, puckered ring like structure, puckered ring like structure, okay, that structure is also called puckered ring like structure। So आपको अगर पूछा जाए apart from carbon name some element that show the property of catenation, silicon, sulfur, boron, phosphorus, however none of these elements form as long chain as carbon, ठीक है। 8 तक पॉसिबल है, कार्बन का कैपेसिटी उससे बहुत ज्यादा है, ओके, कार्बन का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। Now catenation shown by sulfur आप देख सकते हो 2 एटॉम, 3 एटॉम, ऐसे धीरे धीरे करके 8 एटॉम्स का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे है। देन फास्फोरस का कैटेनेशन आप देख सकते हो इन केस ऑफ फास्फोरस,
The atoms are arranged in different way, giving different allotropic forms. Okay. Then catenation in silicon. Silicon में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 सिलिकॉन विथ हाइड्रोजन है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है उतना, ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है. एंड अबाउट टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन. कार्बन का टेट्रा कोवेलेंसी की अगर बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि एक कार्बन एटॉम, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? 4. Since it has 4 electron, it can share 4 electron with other atoms. Thereby its valency is 4. ठीक है, 4 की वजह से यहाँ टर्म यूज किया गया है टेट्रा. एंड इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका वैलेंसी को बोला जाता है कोवैलेंसी. ओके, कोवैलेंसी हम लोग जानते हैं. कोवैलेंसी, व्हाट इज कोवैलेंसी? कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ electrons shared by one atom of the element during covalent bond formation. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एक एटॉम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वही उसका कोवेलेंसी होगा. कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटॉम्स ऑफ कार्बन और एटॉम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन are formed with oxygen, formed with hydrogen, formed with nitrogen, sulfur. So कार्बन कंपाउंड में ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा. कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है. तो इसीलिए इन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप में रखा गया है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि हाइड्रोकार्बन्स और उनसे रिलेटेड जितना भी कंपाउंड है, they are what? They are organic compounds. Hydrocarbons and their derivatives are organic compound. पहले एक डेफिनेशन यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, सिंपल डेफिनेशन, दैट वन इज कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन बाद में ये डेफिनेशन उतना प्रॉपर नहीं माना गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक, कार्बोनेट्स आर इनऑर्गेनिक, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आर इनऑर्गेनिक. ओके, तो ऑर्गेनिक वर्ड आया कहां से? ऑर्गेनिक वर्ड आया लिविंग वर्ड से. लिविंग, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग. पहले साइंटिस्ट लोग सोचता था कि कार्बन कंपाउंड कुछ वाइटल फोर्स से बॉडी के अंदर ही बनता है, प्लांट या एनिमल बॉडी के अंदर ही बनता है. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग रिसर्च किया और दे फॉर द फर्स्ट टाइम जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना, उसका नाम पता है किसी को? मनीष चौधरी ने आंसर दिया है. And that compound is urea. That compound is urea. और यूरिया का फॉर्मूला क्या है? CONH2 whole twice. CONH2 whole twice. Okay. So compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine. Many different type of compounds give rise to compound with specific properties. अलग अलग एटॉम्स अगर उसमें एंटर होता है, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल C2H5 में अगर OH साथ में है तो ये इथाइल अल्कोहल है. C2H5 में अगर Cl साथ में है, C2H5 में अगर Cl साथ में होगा तो इसका नाम है इथाइल क्लोराइड. दे आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो टेट्रा कोवेलेंसी, यूनिक प्रॉपर्टी. और मीथेन का वी ऑलरेडी नो अबाउट. मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे और इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर कैसे बनाना है. 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एटॉम शेयर्स its 4 electron with 4 hydrogen atoms, and then carbon atom acquire electronic configuration of nearest noble gas. तो यहाँ क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट एंड क्रॉस एंड डॉट. तो मीथेन में कितना डबल बॉन्ड है? मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन मीथेन? 0. डबल बॉन्ड एक भी नहीं है. ओके, ऑल आर सिंगल बॉन्ड. ओके, सार्थक पेशेंस रखो. 2 मिनट क्लास अगर ज्यादा लेने का प्लानिंग हो तो यहाँ इम्पेशेंट हो जाते हैं. पेशेंस रखना है थोड़ा.
Now tendency to form multiple bonds. Tendency to form multiple bonds. Carbon का tendency, carbon with other carbon can form single bond, can form double bond, can form triple bond. तो ये सब क्या क्या चीज, क्या टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कार्बन का कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर. तो ड्यू टू स्मॉल साइज, मैंने बोला था कार्बन एटॉम का साइज स्मॉलर है. It has strong tendency to form multiple bonds, double and triple bond also, by sharing more than one electron pair. So one pair of electrons share on a single bond, two pair, double bond, three pair, triple bond. इसीलिए मैंने वो सब चीज आपको पहले समझा दिया था ताकि मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं आए. अब मैं आपको ये अगर पिक्चर में साथ में इथेन दिखा रहा हूं तो आप देखते ही समझ जाओगे हाँ किसके बारे में बात हो. इथीन, यू ऑलरेडी नो दैट दिस इथाइन, दिस वन, क्योंकि स्ट्रक्चर फ्रेम करना मैंने आपको पहले इसीलिए समझाया था कि मुझे चैप्टर को बाद में समझाते वक्त बीच बीच में ब्रेक लगा के इन टॉपिक को डिस्कस नहीं करना पड़े. सो टेंडेंसी टू फॉर्म व्हाट, मल्टीपल बॉन्ड. देन एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड. कार्बन एटॉम जो है इट इज स्मॉल एटॉम ना, तो स्मॉल एटॉम होने से दोनों कार्बन एटॉम के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटा एटॉम होने से न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा या कम अट्रैक्टेड, फोर्स ज्यादा होगा या कम. इफ आई आस्क यू, फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? देयर विल बी मोर फोर्स. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फोर्स ज्यादा क्यों होगा? डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है इसीलिए फोर्स ज्यादा होगा. क्योंकि ये फोर्स जो है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. यहाँ R का स्क्वायर ये जो फैक्टर है, तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड्स. अगेन the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly. आ रहा समझ में? And these bonds, the bonds formed by elements having larger atom are much weaker. तो आपको मैं अगर एक सिंपल क्वेश्चन बोलता हूं कि कार्बन सल्फर के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनता है, तो कहां बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा? इफ आई आस्क यू, बॉन्ड कहां पे स्ट्रांग होगा, सल्फर वाला या फिर कार्बन वाला? तो कार्बन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर वन. सल्फर एटॉम इज मच बिगर. बड़ा एटॉम होने से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता न्यूक्लियस से. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग यूनिक प्रॉपर्टीज. हम लोग डिस्कस करें कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टीज. और मैंने ये बात आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है. कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन सभी कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ओके, तो इसीलिए डेफिनेशन को मॉडिफाई करना पड़ा और एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगा. The characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation put together to give rise to large number of compounds. तो आपको अगर एग्जाम में एक fill in the blank दे दिया जाए, carbon compounds are large in number because of dash and dash, तो आप ये दो टर्म यूज कर सकते हो. टेट्रा कोवेलेंसी लिख सकते हो वैलेंसी की जगह, एंड कैटेनेशन. बट एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ज्यादा नंबर होने के पीछे एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज आइसोमेरिज्म. दैट वन इज आइसोमेरिज्म. इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट आइसोमेरिज्म. और आपने अगर वीडियो देखा है तो थोड़ा नॉलेज हो गया होगा. पहले का क्लासेस में मैंने थोड़ा आइडिया दिया था अबाउट आइसोमेरिज्म. Many have the same non-carbon atom or group of atoms attached to different carbon chain. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर में ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा. other types of atoms may be there. These compounds were initially extracted from natural substances, and it was thought that carbon compounds or organic compounds could only be
formed within living system, इसीलिए इनका नाम ऑर्गेनिक दिया गया। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या है? लिविंग। And that is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. बहुत दिन तक साइंटिस्ट लोग यही मानते रहे कि तो लिविंग बॉडी में ही बनता है, एक वाइटल फोर्स, एक लिविंग फोर्स का जरूरत है इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए। बाद में फ्रेडरिक होलर disproved this in 1828 by preparing urea. Urea for the first time he prepared in lab using the compound ammonium cyanate, NH4 and CO. But carbon compounds, except the oxides of carbon, carbonates, hydrogen carbonate salts, continue to be studied under organic chemistry. Okay, ये होने के बाद भी इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता था, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या था? कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, प्रॉपर्टीज के बेस पे नहीं डिफाइन किया गया था ठीक से। सो एमोनियम साइनेट का फॉर्मूला आप याद रख लो, NH4NCO, और यूरिया का फॉर्मूला आप याद रखना NH2 होल ट्वाइस CO। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NH2CONH2. You can also write like this, NH2CONH2. Okay. First organic compound, क्या नाम बताया मैंने? It is urea. Now organic chemistry और organic compound का आप definition यहाँ देख सकते हो. You can use these definitions. Organic chemistry, the branch of chemistry that deals with the study of carbon compounds other than simple salts such as carbonates, oxides, oxides of carbon, carbides, carbon dioxide, carbon monoxides. Lekin another term, organic compound. Organic compound, any of a large class of chemical compound. Large class matlab kitna number? Approximate number more than 5 million. In which one or more atoms of carbon are covalently linked to the atoms of other element, most commonly hydrogen, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ज्यादातर बिसाइड्स कार्बन के साथ क्या क्या ज्यादातर लिंक दिखेगा आपको? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक, दे आर, अब इनको ऑर्गेनिक नहीं माना जाता। कार्बाइड्स को, कार्बोनेट्स को, साइनाइड्स को। सो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको अगर बोला जाए कि डिफाइन द टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of hydrocarbons, and their derivatives are called organic chemistry. And what are organic compounds? Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. So, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, और ये लास्ट स्लाइड है आज का क्लास का। यहाँ ये ऑलरेडी आपका नॉलेज में है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दो टर्म का मीनिंग। Compounds of carbon which are linked only by single bonds between carbon atoms are called saturated, and compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated. Are called what? Unsaturated. Okay. So now you can mark your attendance. और लेकिन साथ में मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि ये क्लास ओवर होने के बाद आपको 10 मार्क्स का टेस्ट भी देना है मेगा एग्जाम का लिंक से। टेस्ट अभी क्लास ओवर होने के बाद ऑन होगा और फिर आपको टेस्ट को अपीयर होना है। 10 मार्क्स का टेस्ट है और जैसे ही टेस्ट ऑन होगा आपको मैसेज मिल जाएगा। ये विदिन 5 मिनट्स अभी ऑन हो जाएगा टेस्ट।